guys, it's me Prey and today we are reading chapter 20 of Charlie and the Chocolate Factory. Previous chapters as well as the upcoming chapters are linked in the description box if they are already out. So do check it, okay? Let's go. The Great Gum Machine. बहुत ही बड़ी अच्छी गम मशीन, च्युइंग गम की मशीन. Mr. Wonka led the party over to a gigantic machine that stood in the very center of the inventing room. It was a mountain of gleaming metal that towered high above the children and their parents. Out of the very top of it there sprouted hundreds and hundreds of thin glass tubes. And the glass tubes all curled downward and came together in a bunch and hung suspended over an enormous round tub as big as a bath. मिस्टर वोंका सब लोगों को एक बड़ी सी मशीन के पास ले आए. वो बड़ी सी मशीन जो है इन्वेंटिंग रूम के बिल्कुल बीच में खड़ी थी. वो एक पहाड़ था चमकते हुए मेटल का जो काफी ऊपर था बच्चों और उनके माँ बाप से. उसके जो टॉप है वहां से बहुत सारे क्या निकल रहे थे, ग्लास ट्यूब्स, राइट, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स. पतली सी शीशे की ट्यूब्स निकल रही थीं और वो ट्यूब्स जो है कर्ल होके नीचे की तरफ आ रही थी और वो सब एक बंच में, ठीक है, आई थी और वो लटक रही थी किस चीज पे, एक टब पे, एक बड़े से राउंड टब में आ रही थी. और वो टब क्या था, इतना बड़ा था जितना के बाथ हो. हमने बाथ टब देखा था, वो यहाँ पिक्चर लगा दूंगी so you will remember it. Here we go, cried Mr. Wonka, and he pressed 3 different buttons on the side of the machine. A second later, a mighty rumbling sound came from inside it, and the whole machine began to shake most frighteningly, and steam began hissing out of it all over. And then suddenly the watchers noticed that runny stuff was pouring down the insides of all the hundreds of little glass tubes and squirting out into the great tub below. And in every single tube the runny stuff was of a different color, so that all the colors of the rainbow and many others as well came sloshing and splashing into the tub. It was a lovely sight, and when the tub was nearly full, Mr. Wonka pressed another button, and immediately the runny stuff disappeared, and a whizzing sound, whirring noise took its place, and then a giant whizzer started whizzing round inside the enormous tub, mixing up all the different colored liquids like an ice cream soda. Gradually, the mixture began to froth. और अब हम यहाँ गए, मिस्टर वोंका ने जोर से कहा और उन्होंने फिर 3 बटन दबाए उस मशीन पे. मशीन की साइड पे जो 3 बटन थे वो दबाए. 1 सेकंड के बाद बहुत जोर से आवाज आने लगी मशीन में से और फिर पूरी मशीन जो है हिलने लगी डरावने तरीके से और फिर उसमें से स्टीम निकलने लगी. और फिर अचानक जो देखने वाले थे उन्होंने देखा कि ये जो ट्यूब्स थी उनमें कुछ बह रहा है. रनी सब कुछ बहता हुआ आ रहा है, नीचे आ रहा है और टब में निकल रहा है. ट्यूब्स में से मशीन में ऊपर चीजें आ रही हैं और फिर वो नीचे टब में जा रही हैं, राइट. और फिर हर ट्यूब का जो स्टफ था, जो चीज थी उसके अंदर, वो एक अलग रंग का था जो कि हिलता जुलता ट्यूब में से आ रहा था. रैम्बो के कलर्स थे और भी बहुत सारे कलर्स थे. और फिर जब टब तकरीबन भर गया, मिस्टर वोंका ने एक और बटन दबाया और अचानक जो भी ये चीजें बहती हुई आ रही थी वो गायब हो गई और एक मशीन की आवाजें आने लगी डिफरेंट तरीके की, जैसे कोई चीज चल रही हो, घूम रही हो, राइट. फिर एक मिक्सचर करने वाला आया, बड़ा सा मिक्सचर टब में, और वो क्या करने लगा, वो हर कलर को, हर लिक्विड को एक आइसक्रीम सोडा की तरह
मिक्स करने लगा। अब चीजें जब मिक्स होती हैं तेजी से, आप सब कुछ साथ वो कर रहे हो तो उसमें बबल्स बनने लगते हैं और उसका टेक्सचर चेंज होने लगता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉथ। ओके, तो वो होने लगा इस मिक्सचर में। It became frothier and frothier, and it turned from blue to white to green to brown to yellow, then back to blue again. अब क्या है, बबल्स बहुत सारे बन रहे हैं और जो रंग है उसका चेंज हो रहा है। ब्लू से व्हाइट हुआ, व्हाइट से ग्रीन हुआ, ग्रीन से ब्राउन हुआ, ब्राउन से येलो हुआ और फिर दोबारा ब्लू हो गया। वॉच, सेड मिस्टर वोंका। मिस्टर वोंका ने कहा देखो। क्लिक went the machine, and the whizzer stopped whizzing, and now there came a sort of sucking noise, and very quickly all the blue frothy mixture in the huge basin was sucked back into the stomach of the machine. There was a moment of silence, then a few queer rumblings were heard, then silence again. Then suddenly the machine let out a monstrous, mighty groan, and at the same moment a tiny drawer, no bigger than the drawer in a slot machine, popped out of the side of the machine, and in the drawer there lay something so small and thin and grey that everyone thought it must be a mistake. The thing looked like a little strip of grey cardboard. फिर मशीन ने किया क्लिक और जो मिक्सिंग हो रही थी ना वो रुक गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, सकिंग आवाज आई किसी चीज को खींचने की। तो क्या हुआ, अचानक से जो ये ब्लू मिक्सचर था ये सारा मशीन के पेट में चला गया टब में से, जिसको अब वो बड़ा सा बेसन कह रहे हैं। फिर थोड़ी देर खामोशी हुई, फिर और आवाजें आने लगी थोड़ी सी, फिर खामोशी, और फिर अचानक मशीन ने एक बड़ी सी आवाज की और उसी वक्त एक छोटा सा ड्रॉर आया खुला। राइट, आगे आया, सामने खुला। जैसे कि स्लॉट मशीन, ये मशीन्स होती हैं, आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं, पिक्चर लगा दूंगी, उसमें भी ऐसे ड्रॉर होता है। तो वो खुला और इस ड्रॉर में उसमें एक छोटा सा पतला सा ग्रे कलर का कुछ था। सबको लगा कि ये कोई मिस्टेक है, गलती हो गई है, क्योंकि ये चीज जो है एक छोटी सी पट्टी लग रही थी ग्रे कार्डबोर्ड की। राइट, जो पैकिंग वगैरह में कार्डबोर्ड यूज होता है ना, उसकी बात हो रही है। The children and their parents stared at the little grey strip lying in the drawer. बच्चे और उनके माँ बाप उस छोटी सी पट्टी को घूरने लगे। You mean that's all? said Mike TV disgusted. आपका मतलब है बस ये? माइक टीवी ने कहा। डिस्कस्टेड होके यानी काबिले नफरत कोई चीज, बस यही, इस तरीके से माइक टीवी ने कहा। That's all, answered Mr. Wonka, gazing proudly at the result. Don't you know what it is? हाँ बस, आंसर किया मिस्टर वोंका ने, जो उनका रिजल्ट था उसको देखते हुए और काफी प्राउड से, फखर से। तुम्हें पता नहीं है कि ये क्या है? There was a pause. Then suddenly Violet Beauregard, the silly gum-chewing girl, let out a yell of excitement. By gum! It's gum! She shrieked. It's a stick of chewing gum. फिर खामोशी थी। अचानक से वायलेट बुरोगार्ड, वो पगली सी लड़की जो गम चबाती रहती है, च्युइंग गम को, राइट, उसने चिल्लाया एक्साइटेड होके कि ये गम है, ये एक गम का टुकड़ा है, स्टिक है। राइट यू आर, क्राइड मिस्टर वोंका, स्लैपिंग वायलेट हार्ड ऑन द बैक। इट्स अ स्टिक ऑफ गम. It's a stick of the most amazing and fabulous and sensational gum in the world. तुम ठीक कह रही हो, मिस्टर वोंका ने कहा। स्लैपिंग वायलेट की समझो पीठ थपथपाई, पर उन्होंने उसको थोड़ा सा चमाट की तरह ज्यादा मारा था थपथपाने की बजाय, but you get the idea.
उन्होंने कहा हाँ ये स्टिक है गम की। ये बहुत ही अच्छी, शानदार और दिलचस्प गम है दुनिया की। अब यहाँ पे पिक्चर है मशीन की, सब लोग देख रहे हैं, मिस्टर विली वोंका दिखा रहे हैं कि देखो मेरी गम मशीन, यस। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड ऑल्सो द चैप्टर। तो इतना ही चैप्टर था, छोटा था आज, और नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह आगे की वीडियो में होगा। अगर आ चुका होगा तो वो लिंक्ड होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक इट। मैं सोच रही हूँ नोट्स वगैरह का भी, अगर वो भी आ चुके हैं तो वो लिंक्ड होंगे, सो डू चेक देम एज वेल। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, टू सब्सक्राइब एंड शेयर। डोंट फॉरगेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी कुछ होता है, मेरा पर्सनल चैनल है, इंस्टाग्राम, लॉट्स ऑफ स्टफ, डू चेक इट। ओके, बाय।